Good evening. Now today we learn about the medieval history of India. It is the syllabus of class 7 for social studies. Medieval India starts from 700 CE to 1700 CE. It means it starts from 8th century to 17th century. 8th century to 17th century. The main and important question of this chapter is describe the literary sources of medieval India. मध्यकालीन भारत का साहित्यिक स्रोत, मध्यकालीन भारत का इतिहास हमको इन स्रोतों से प्राप्त होता है। उसके लिए तीन तरह के लिटरेचर्स हैं, जिसमें है कोर्ट क्रॉनिकल्स, जिसमें दरबारियों के द्वारा राजाओं के प्रशस्ति में कहे जाने वाले, लिखे जाने वाले कुछ किताबें हैं। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस, एंड ट्रेवलॉग्स, यात्रा वृत्तांत, यात्रा का विवरण है। तो कोर्ट क्रॉनिकल्स में आप नंबर 1 देखेंगे, द फर्स्ट बुक अबाउट medieval India, which gives an importance to information about the Chalukya king Vikramaditya VI. That is Vikramank Dev Charit. Vikramank Dev Charit. Written by Wilhar. Written by Wilhana. About Vikramaditya VI. The second mark is Raj Tarangini. Raj Tarangini by Kalhan. Kalhana. About the rulers of Kashmir. It is very important source. Number 3, तारीख ए फिरोजशाही. तारीख ए फिरोजशाही. तारीख ए फिरोजशाही by Ziauddin Barni. Generally, we can say that it is written by Barni. Short name Barni. It is about the Delhi Sultanate and Tughlaq dynasty. And the next, many sources are available. The fourth is Tughlaqnama. Tughlaqnama by Tughlaqnama by
अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। Amir Khusro was also known as Tota-e-Hind or Parrot of India because he wrote more and more about India's poetry, India's literature, and it starts the language Urdu also. Now, biographies includes like an autobiography of Babar, Babarnama, Babarnama by Babar. Number two, Akbarnama, Akbarnama by Abul Fazl. Third, Humayunama, Humayunama by Gulbadan Begum, the sister of Humayun, by Gulbadan Begum. Number fourth, Prithviraj Raso. Prithviraj Raso by Chand Bardai. Chand Bardai. Babarnama, it was written by Babar. It is a autobiography. Akbarnama by Abul Fazl by his courtiers. Humayunama by his sister Gulbadan Begum. And Prithviraj Raso about the Prithviraj Chauhan by his friend Chand Bardai. Chand Bardai was also his courtiers. Now, third, travelogues. यात्राएं जो विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्राएं की उसके बारे में जो यात्री आए यहाँ पे जो देखा जो लिखा वो महत्वपूर्ण सोर्सेज में आते हैं। नंबर वन, इब्न बतूता। इब्न बतूता of Morocco. He came from India, from Morocco, and his famous book is Rihla. रिहला नाम की एक बुक लिखी थी इसने, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे जो बुक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बाबरनामा, अकबरनामा, जनरली ये हुमायूंनामा, ये फारसी में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज। एंड पृथ्वीराज रासो was written in the Hindi and Bundeli language. इब्न बतूता, इसकी कहानी आप पढ़े होंगे, छोटे बच्चों को पोएम में पढ़ाया जाता है। इब्न बतूता पहन के जूता, वो वाला इब्न बतूता मोरक्को से आया था। उसने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां अपने ट्रैवलॉग्स में दी है। रिहला में भी बहुत सारा वर्णन उसने भारत के बारे में किया है। सेकेंड सोर्स इज गिवन बाय किताब उल हिंद, किताब उल हिंद बाय अल बरूनी, किताब उल हिंद by Al-Baruni. Al-Baruni also a historian. Al-Baruni.
Al-Biruni is a great historian. Number third, Ralph Fitch, William Hawkins, and नंबर थर्ड मार्को पोलो. नाम है मार्को पोलो फ्रॉम इटली. एंड फोर राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, फ्रॉम इंग्लैंड. These travelogues are a stone mile in the source of medieval India. Medieval India starts with a saga of tripartite struggle. Now we learn about the next question. What is the tripartite struggle? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Now the next question. What is tripartite struggle for Kannauj? In medieval India, Kannauj was a rich and very fertile land. So many kingdoms, many clans was attracted to Kannauj. Now today's कन्नौज इज फेमस फॉर इत्र. आज के समय में वर्तमान में कन्नौज इत्र के लिए ही प्रसिद्ध है. लेकिन उस समय मध्यकालीन भारत में कन्नौज बहुत ही फर्टाइल जमीन का हिस्सा था, जिसके लिए बहुत सारे राजवंश आपस में संघर्ष करते रहते थे. इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 3 राजवंशों का उल्लेख है. 3 राजवंश, जिसमें पहला राजवंश था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि मालवा में राज करते थे. राजस्थान का एरिया है. सेकंड है द पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, एंड द थर्ड इज Rashtrakutas of Deccans. These are 3 parts of this struggle. Because there are 3 dynasties, so it is known as tripartite struggle. त्रिपक्षीय संघर्ष. ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में आप आंसर में लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. It is a saga of long struggle. It is a saga of long struggle among गुर्जर प्रतिहार of Malwa, the Pals of
the Pals of Bengal and the Rashtrakutas, Rashtraकूट, प्लूरल में राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, Deccan is the area of Maharashtra near Solapur region and some part of Andhra also. It's a very long struggle. It fought many years long, and finally all the dynasties were defeated by different clans, and the Mahmud of Ghazni. The important is, note कीजिए, finally all these dynasties diminished by invaders of Central Asia. इसमें आप लिख सकते हैं महमूद गजनी, महमूद गजनी सेंट्रल एशिया में, गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में गजनी नाम का जो स्थान है, वहां से गजनी भारत आया था और उसने ही गुर्जर प्रतिहार, पाल राजवंश, राष्ट्रकूटों को, इन सबको लास्ट में फाइनली उसने पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पहला इन्वेडर था, सेंट्रल एशिया से आया था, क्योंकि सेंट्रल एशिया में कुछ था नहीं उस समय। और एक बार हमारे अभी प्रधानमंत्री 1998 पंडित अटल बिहारी वाजपेयी goes to Afghanistan and he wants to see the mosque of महमूद गजनी। एक बार हमारे प्रधानमंत्री अफगानिस्तान विदेश यात्रा पे गए तो उन्होंने कहा कि वो गजनी देखना चाहते हैं, जहां पे महमूद गजनी ने जहां से आया था। तो वहां के लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं है, छोटी सी कब्र है और वहां पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी वहां पे कोई वैल्यू आज भी नहीं है, महमूद ऑफ गजनी, भारत पे आता है, बड़े बड़े राजवंशों को हराता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख देता है। तो ये केवल इसीलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी राजवंश थे वो आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे और उसी की वजह से आपसी खींचतान में सबके सब मारे जाते, सब सारे राजवंश नष्ट हुए आपसी कलह से। तो आपको इसमें इतना ही लिखना है, ट्राइपाइटाइट स्ट्रगल में, इट इज ए सागा ऑफ लॉन्ग struggle among Gurjar Pratihar of Malwa, the Pals of Bengal, and the Rashtrakutas of Deccan for Kannauj। थोड़ा सा यहां बढ़ा लीजिएगा, for
कन्नौज, कन्नौज के लिए ये लोग लड़ रहे थे। कन्नौज के लिए इनका युद्ध था, क्योंकि कन्नौज बहुत ही उपजाऊ जमीन वाला क्षेत्र था, जहां से मैक्सिमम टैक्स मिल सकता था इनको। फाइनली दे आर डिमिनिश्ड। Now the next question about these three dynasties, the important rulers of Gurjar Pratihar, the important Pal kings and important Rashtrakutas. Now we write the next question. Who were Pals? Who were Pals of Bengal? Who were Pals of Bengal? And Rashtrakutas. राष्ट्रकूटास। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार में बहुत विशेष खास नहीं है, इसमें केवल यही है कि इसमें एक राजा मिहिर भोज था, वही सबसे उसमें एक प्रतिभाशाली शासक वहां का, उसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश में था, जो कि मालवा का क्षेत्र था। लेकिन पाल वंश जो है आता है यहाँ पे, पाल सब बंगाल, देयर आर मेनी रूलर्स, strong rulers. They works in India and makes many temples, universities. Rashtrakutas also have the powerful rulers. He also works on temples and education field. So now we learn about the Pals of Bengal and Rashtrakutas. तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आंसर अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we learn about Pal dynasty and the Rashtrakutas in the next session. Thank you.